Welcome to all of you in this 7th class history class again with the topic is the kings and their kingdom of part 3rd. Okay, before to starting this part 3rd, it is necessary to repeat or revise the part 1st and 2nd. Okay, so in part 1st what we done about or we studied about the three main dynasty, which one is a northern India. That name was Gurjara Pratihara, Pala and the Rashtrakuta. The Gurjaras belong from the Gujarat near about areas. The Pala is belong to the Bengal area, Assam, Odisha, little bit that Bihar, and the Rashtrakuta is belong to the Maharashtra or the Deccan region. After that we studied about the tripartite struggle in 2nd class, in second part of that chapter. In second part we studied about the tripartite struggle. What is the tripartite struggle? Tripartite struggle is between in these three dynasties, Gurjara Pratihara, Pala and the Rashtrakuta. Just because of one reason, that name was Kannauj. Okay, and who was won that time? The Gurjara Pratihara won. So these are other Rashtrakuta, Raja Bhoja, which one is the most famous ruler of that time. He was won the and made the capital as Kannauj. This done of the about the northern India. After that we start the second one, the third part. In this part we read or studied about the Muslim invasion. What is the Muslim invasion? I told you in first class when we start this session online, then I told you by the CBSE the classes has divided their syllabus, okay, syllabus wise. In 6th class we read or studied about the prehistory or the history of the earth, and in the second part in class 7 we studied about the medieval period. The medieval period is that period when the Muslim invasions from the Afghanistan or Turkey or the Mughals, the someones of that attackers are attacked on India. So in this third part we started this topic, Muslim invasion. The invasion means is attack. The invasion means is attack. Attack, Muslim invasion. And where is the Muslim religion is from the came to the India? From the Afghanistan. From which region it came from? Afghanistan. So Afghanistan is a region of Muslim rulers. Okay, and India has a Hindu rulers in all in northern to southern India. But what is going there in Afghanistan? In that time of India, there is a trade between the Afghanistan and the India. Some of the traders, some of the businessmen, craftsmen have taken their business from the both of the countries, between the India and the Afghanistan. Because of that time, I want to tell you, because this is a Jammu Kashmir area, this is just a India, okay, and there is a Rajasthan, and after that there is a Gujarat and Peninsula, there is a Pakistan. All you know, that is a Pakistan, which were nowadays our neighboring country, but that time it is a part of India. Okay, so that after the Pakistan, this is a boundary of, leave it, okay, we just suppose that this area also has by the conquering of the India. Okay, this area is from this area, and there is Multan, there is Lahore, there is Peshawar. Okay, these are the cities which one is laid down nowadays in Pakistan. But that time when we talk about the Muslim invaders came to the India, that time these cities are holding in a India region or the Indian country. And the last is Lower Sindh. Lower Sindh.
and from the Lahore you can write here Punjab. Clear? So these are the main cities of the Pakistan from where this first invader, just suppose this is Afghanistan, okay, Afghanistan, this is Afghanistan, this is a boundary of India and Afghanistan. So it is so much near or closer because only the boundary is there, okay, and there is no one is holding there a government that कि वो government hold करे ना कि ये हमारी boundary है, इसके पार आप नहीं आ सकते, like nowadays. But that time the kingdoms have, they make their boundaries self and there is no पर्टिकुलर एरिया टू बाउंड्री. जो जितना एरिया जीतता था, जो जितने ज़्यादा अटैक्स करता था और जीतता था, वो राज्य उसका हो जाता था. So here we talk about the Afghanistan first Muslim attacks or invasion. The first attack when India held. फर्स्ट टाइम जो अटैक हुआ, मुस्लिम अटैक इंडिया के ऊपर. आपस में ये हिंदू डायनेस्टीज तो लड़ती थी, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था. गुर्जरा इज ऑल्सो हिंदू, पाला इज ऑल्सो एंड द राष्ट्रकूटा ऑल्सो. तो ये आपस में इंडिया के अंदर ही इनके कॉन्फ्लिक्ट चलते थे. बट वेन एवर वी टॉक अबाउट द मुस्लिम इन्वेशन, दिस इज द फर्स्ट अटैक अफगानिस्तान. सो स्टार्ट फ्रॉम दिस. This is the map of, because this is, there is a Pakistan, so leave it because we studied about the that time before approximately 1000 CE. Okay, so that time the Pakistan also a part of Indian region. Clear? Come to this side. There is first attack of Muslim invasion. The name of that invader is Muhammad Ghazni. Muhammad Ghazni or Mahmud Ghazni. Okay, can we say here Mahmud Ghazni. आपने बहुत नाम सुना होगा महमूद गजनी. He was an invader of that time, that first time came to India. Okay. When he came to India first time, firstly before the invasion we just something knows about the Ghazni. हमें कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी गजनी के लिए कि ये था कौन. He was a local ruler. यहाँ पे points लिखते हैं. He was a local ruler. Okay, of Balkh. It is a name of a place. Okay, it is a name of a Balkh. It is a name of a place of Afghanistan, of Balkh and Ghazni, of Afghanistan. So first thing it is that it is a local ruler, and he was not, his father was. Okay, he was not a ruler that time. His father was a king or a ruler of a local area. That name is Balkh in Afghanistan. It is called as a Ghazni also. Okay, a near about area that ruling is called as a Ghazni also. So he was local ruler of Balkh and Ghazni of Afghanistan. Actually his father. Okay, the second thing is his father name was Subukh-e-Zin or Zin, you can say Subukh-e-Zin. His father name was Subukh-e-Zin. He was from the Balkh, Ghazni. It is the area near about of Afghanistan. So what we know about the Ghazni, he was a local ruler just, and his father name is Subukh-e-Zin. His father was the ruler of Balkh, that is area, that is a small town of Ghazni. So this is a formal introduction of Mahmud Ghazni. Mahmud Ghazni. Okay, because he came first time to India to just looted the wealth. He came to India. The third point is he came to India
just for looted the wealth. Okay, he came just for looted the wealth. And what is the reason why he want to looted the wealth? All these because he wants or he wanted to make his Ghazni empire or Ghazni whatever na place empire as stronger. That's why he looted India many times. We all know that time India is called as the सोने की चिड़िया, okay, a golden bird. The golden bird means कि इतना ज़्यादा wealth है हमारे पास कि हमारे हर तरफ हमें सोना दिखता है, especially near to the temples, है ना, or in the temples, because there is an idol of the that Shivji or any kind of god and goddess, that they have a crown, that they have a jewelry of wearing, that all these are made by the gold or the different kind of precious stones are, है ना. So the Ghazni has information that India has called as a सोने की चिड़िया. इंडिया को क्या बुलाया जाता है? सोने की चिड़िया बुलाया जाता है. इतनी ज़्यादा वेल्थ है बिकॉज ऑफ जो क्राफ्टमैन, बिजनेसमैन, ट्रेडर्स जो वहाँ से हमारा ट्रेड चलता था, उन्होंने इस बात को जाके बताया. आप ये कह सकते हैं शायद वो तारीफ कर रहे होंगे हमारी कि इंडिया में तो इतना वेल्थ है कि राजा महाराजा जो है सोने की थालियों में खाना खाते हैं, चांदी के बर्तनों में खाना खाते हैं. तो इससे गजनी को लगा कि जहाँ पे इतना ज़्यादा वेल्थ है, इतना ज़्यादा सोना है, तो क्यों ना हम उस सोने को लूट लें और अपने गजनी एम्पायर को स्ट्रॉन्गर बना लें. तो उसका सिर्फ मोटिव, अ सिंगल मोटिव ऑफ गजनी वाज कि हमको सिर्फ बहुत सारा वेल्थ लूटना है और वापस ले जाना है अपने गजनी एम्पायर को और उसको मजबूत बनाया है. क्योंकि गजनी एम्पायर अफगानिस्तान में है एंड अफगानिस्तान वी ऑल नो कि कैसा एरिया है, वहाँ की लैंड कैसी है, मोस्ट ऑफ लैंड डेजर्ट या बैरन लैंड है. ओके, तो इस वजह से उसने ये सोचा कि चलो भाई अटैक करते हैं और अटैक करने के बाद हमको जितना भी वेल्थ मिलेगा उसको हम वापस ले आएंगे अपने गजनी एम्पायर में और उसको स्ट्रॉन्गर बना लेंगे. दैट इज अ सिंगल मोटिव. स्टोरी समझ में आ गई? गजनी नाम का एक राजा था जो अफगानिस्तान का था, एक छोटे से एरिया का. ठीक है, वो वहां से आया इंडिया सिर्फ वेल्थ लूटने के लिए. आप कह सकते हो ऐसे डाकू होते थे ना पुराने टाइम पे जो सिर्फ वेल्थ लूटते थे हमेशा, वो ऐसा ही कुछ था. बस ये क्या था, ये मुस्लिम था और ये आया था अफगानिस्तान से, ये इंडिया का नहीं था. दिस इज द फर्स्ट. अब आ जाते हैं, फोर्थ पॉइंट हो गया हमारे. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट. अब जब ये आ ही रहा था इंडिया में अटैक करने, तो कब आया, फर्स्ट टाइम कब आया? He started to came to India. This is the first point in 1000 CE. First time he came to India. First time वो इंडिया आया था. 6 point is कितनी बार आया? टोटल 17 times. 17 times he came to India. वो 17 times इंडिया पे उसने अटैक किया just for the looted the wealth. The seventh point is, अब एक बार आया है, फर्स्ट टाइम जब आया 1000 CE में, टोटल आया 17 टाइम्स में. ओके, एंड लास्ट टाइम कब आया? 1025 CE he came last. Okay, and the eighth point is, and the last point is, he died in 1030 CE. 1030 CE में उसकी डेथ हो जाती है. अगर शायद और जिंदा रहता तो और बहुत बार आता. टोटल ऑफ 25 ईयर्स के लमसम आया था वो 1000 CE टू 1025 CE. रिमेंबर, बहुत इजी सी डिजिट है, 1000 CE टू 1025 CE. लगभग 25 सालों में वो 17 टाइम्स इंडिया आया था. ओके, सो और क्यों आया था? आई टोल्ड यू, टू लूटेड द वेल्थ. सिर्फ वेल्थ को लूटने के लिए, सोने को लूटने के लिए.
कहा जाता है उस टाइम ये जो हमारी बुलक कार्ट्स होती हैं ना, जो हमारे बैलगाड़ियाँ होती हैं, इनको 50-50 जो बुलक कार्ट्स होती थी ना, ये उनको भर के लेके जाता था। इतना ज़्यादा सोना ये इंडिया से लेके गया है अपने अफ़गानिस्तान में। जब वो वहाँ पे सोना लेके जाता था अपने पास में, तो और लोग भी इंस्पायर होते थे, बोलते थे अरे इतना ज़्यादा वहाँ पे गोल्ड है। तो अगली बार जब वो आता था ना, तो उसके साथ और ज़्यादा लोग जुड़ जाते थे। उसकी जो सेना थी, जब वो पहली बार आया था तो उसकी सेना में अप्रॉक्सीमेटली 50 लोग थे, 50 लूटेड ना दैट डेकेड्स आर देयर। बट आफ्टर दैट टिल द 25 सी, जब तक वो आया है 1025 सी में, तब तक करीब 250 लोग या उससे भी ज़्यादा लोगों ने उसके साथ अटैच किया, जस्ट बिकॉज कि उसने ये बोल दिया था तुम जो लूटोगे वो तुम्हारा है। तो इस वजह से लोग उसके साथ आते थे और जो इंडिया है वहाँ से सामान लूटते थे। बहुत इम्पॉर्टेंट थिंग है गजनी से रिलेटेड कि इन्होंने, कैन आई रेज इट, ओके, सो जब वो इंडिया पे उसने अटैक किया, ठीक है, हमें ये तो पता चल गया कि उसने 1000 सी टू 1025 सी तक अटैक किया, 17 टाइम उसने अटैक किया एंड अप्रॉक्सीमेटली 25 ईयर्स तक कंटिन्यूसली उसने अटैक करते रहा कुछ कुछ गैप पे। बट जो मेन उसका जो लूटेड है ना, जो सबसे ज़्यादा जो कह सकते हैं अपना कि उसको प्रॉफिट देता था, उसकी सबसे पहली नज़र, कीप द आइज ऑन द हिंदू टेम्पल्स। उसकी सबसे पहली नज़र किस पे पड़ी थी? हिंदू टेम्पल्स पे। आज भी देखिए हम मंदिर जाते हैं तो वहाँ पे एक दान पेटी रखी होती है, हम सब उसमें बिना किसी से बोले, बिना किसी को बताए, हम उसमें दान पेटी में दान डाल देते हैं। किसके लिए? भगवान के नाम पे, है ना, कि भगवान के लिए हमको, या हम जो भी चीज़ों से मानते हैं, या हमने मनौतियाँ मानी होती हैं बहुत सारे लोगों में इन हिंदू रीजन दैट इज, तो क्या करते हैं हम उसमें दान डालते हैं। ऐसे ही जो पिछले जो टाइम था, क्योंकि ये हिंदू रिवाज आज के तो है नहीं, हज़ारों साल पहले के हैं, तो उस टाइम भी ये मान्यता थी और लोग बड़ी मात्रा में जो राजा महाराजा होते थे, या जो क्राफ्टमैन, बिजनेसमैन, या नॉर्मल व्यक्ति भी जो आम आदमी होता था ना, वो भी अपनी श्रद्धा के अनुसार दान पेटी में पैसे डाल के आता था। कुछ लोग पैसे डालते थे, कुछ लोग सोना डालते थे, कुछ लोग ज्वेलरीज डालते थे। और मैंने आपको बताया कि वहाँ के जो हमारे आज भी जो मंदिर हैं, उनमें देखिए भगवानों को खूब सजाया जाता है, सोने के मुकुट, सोने की ज्वेलरी सब पहनाया जाता है ना। तो उसकी सबसे पहली नज़र पड़ी थी टेम्पल्स पे। उसको लगा कि टेम्पल एक ऐसी जगह है जहाँ वेल्थ तो बहुत ज़्यादा है और प्रोटेक्शन बिल्कुल नहीं है। अगर वो किसी राजा का, किसी किंग का ट्रेजर हथियाना चाहता, तो उसको उस राजा से लड़ाई, कॉन्फ्लिक्ट करना पड़ता, लड़ाई करनी पड़ती और जीतना पड़ता। जबकि अगर वो मंदिर से उठाएगा, है ना, मंदिर से सारी चीज़ें वेल्थ उठाएगा, मूर्तियाँ और सोने की मूर्तियाँ थी वो उठाएगा, या क्राउन्स भगवान को जो पहनाए जाते हैं, या ज्वेलरीज जो पहनाई जाती हैं, वो उसको बचाने वाला कोई नहीं है ना। उनको एक पंडित है वहाँ पे और उससे ज़्यादा कोई फोर्स नहीं है, कोई सिपाही नहीं है, मंदिर के बाहर कुछ भी नहीं है। तो उसने सबसे पहले अपनी नज़र डाली मंदिरों पे, और मोस्ट ऑफ जितने मंदिर उसके रास्ते में पड़ते चले जाते थे, वो उन मंदिरों को लूटता जाता था। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट इज जो सबसे ज़्यादा इसका अटैक जो जाना जाता है इन हिस्ट्री में, वो था सोमनाथ टेम्पल अटैक। सबसे ज़्यादा अगर कोई जो जाना जाने वाला, जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि गजनी फेमस हो गया, वो था सोमनाथ टेम्पल का अटैक। ये उसने लास्ट 17th टाइम, जब वो लास्ट टाइम आया था ना, तब उसने ये अटैक किया था सोमनाथ टेम्पल में, जो कि गुजरात में है। और उस टाइम उसने पूरा जो टेम्पल था ना, उसको ही तहस नहस कर दिया था। सिर्फ जो भगवान की जो मूर्ति थी ना, जो शिवलिंग था, सिर्फ क्योंकि ये शिव जी का मंदिर है एक्चुअली, तो वो ही बचा रह गया, और बाकी पूरा मंदिर इन्होंने तोड़ गिराया था। क्योंकि उस टाइम जो सोमनाथ मंदिर था, वो उसकी मान्यता आज भी बहुत है और तब भी बहुत थी। तो उन्होंने क्या किया, जो दीवारों पे जो राजा लोग थे वहाँ के, उन्होंने क्या कर रखा था, पूरी गोल्ड की शीट लगवा रखी थी, है ना, उस पर फूल पत्तियाँ बन रखी थी, और उन फूलों में प्रीशियस जेम्स लगा रखे थे कि सुंदर लगे देखने में, है ना। तो गजनी ने क्या किया था, वो दीवारों से वो पूरी शीट्स ही निकलवा ली थी। अब शीट्स निकालेंगे तो दीवारें टूटेंगी, तोड़ तोड़ के निकालेंगे। तो इस वजह से सोमनाथ टेम्पल, जो कि सबसे बड़ा अटैक था उसका, वो सोमनाथ टेम्पल जो हमारे इंडिया का सबसे बड़ा टेम्पल था उस टाइम पे,
आज भी बहुत मानते हैं लोग उसको। गुजरात में था। इन 1951 में अगेन हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने आफ्टर इंडिपेंडेंस इसको फिर से रिन्यूअल कराया था। अभी जो आप सोमनाथ टेम्पल देखते हैं ये पुराना सोमनाथ टेम्पल नहीं है, इसको वापस से हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने रिन्यूअल कराया है। तो आई होप गजनी, महमूद गजनी के बारे में काफ़ी कुछ समझने में आ गया हमारे। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट इन्वेडर सेकेंड अटैक की। ये इन्वेडर मैंने आपको बताया, ये जो इन्वेशन था ये किस लिए था, ये था जस्ट बिकॉज ऑफ सेकेंड अटैक की बात कर रहे हैं। पहला अटैक सिर्फ लूटने के लिए था, कितनी ज़्यादा वेल्थ हम ले जा सकते हैं, बट द सेकेंड अटैक विच वन इज द मोहम्मद घोरी। मोहम्मद घोरी, घोरी, इट इज अ फेमस नेम ऑल्सो। इट इज अ सेकेंड अटैकर। जब गजनी ने अटैक कर लिया, उसने अपना खूब वेल्थ बना लिया गजनी में जाके अफगानिस्तान में, देन ये एक नया आया आप, लेकिन इनका पर्पस अलग था। गजनी wanted to just looted the wealth, but he wanted to extend their empire. He wanted to extend their empire. Okay, all you know what is the empire? The kingdom. Okay, he wanted to extend their empire. ये अपने एम्पायर को बढ़ाना चाहता था, ये लूट के नहीं जाना चाहता था, ये चाहता था कि अफगानिस्तान से लेके इंडिया तक उसका राज्य हो जाए, है ना, वो वहाँ पे राज करे। अब बात करते हैं घोरी सेकंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फेमस है, और आपके या अगर आगे भी ना, जो आप जब भी हिस्ट्री पढ़ोगे तो इट विल वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर यू। चलिए, ये एक्सटेंड करना चाहता था। अब इनके लिए भी पर्सनल इनकी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। द महमूद घोरी इज केम फ्रॉम घोर। इट इज ऑल्सो little town or the small town, can we say small town of Afghanistan. ये एक ये भी एक छोटा सा शहर था, टाउन था अफगानिस्तान का, जिसका नाम क्या था, घोर। इसीलिए इसको मोहम्मद घोरी। आपने एक चीज नोटिस करी, महमूद गजनी, है ना, जैसे हमारे यहाँ राजा बोलते हैं ना कि ये जो हैं ये रायगढ़ के राजा हैं, ऐसे बोलते हैं ना कि किसी पर्टिकुलर प्लेस को लेके कि ये वहाँ के राजा हैं, ऐसे ही, या ये दिल्ली के राजा हैं। तो ऐसे ही अफगानिस्तान में भी जब मोहम्मद गजनी आया था, इसलिए उसको गजनी, उसका नाम कुछ और था, बट उसको उसकी प्लेस की जगह से जाना जाता था महमूद गजनी। और वैसे ही मोहम्मद घोरी जो था, इसको भी हम इनके प्लेस के नाम से ही जानते थे, एज अ मोहम्मद और महमूद घोरी। चलिए आ जाते हैं थर्ड पॉइंट में। इट इज़ कि एक्सटेंड करना चाहता था, घोर अफगानिस्तान प्लेस से आया था, एंड द सेकेंड इज ही स्टार्टेड टू अटैक इंडिया फ्रॉम द फर्स्ट टाइम एट मुल्तान। मुल्तान ये सिटी है पाकिस्तान में आज, बट दैट टाइम इज इन इंडिया। ओके, तो मुल्तान में इसने अटैक किया इन 1175 में। फर्स्ट टाइम इसने अटैक कब किया, 1175 में। देन पंजाब आया 1179 में। देन ही केम टू द पेशावर इन 1185 एंड ही केम टू द लोअर सिंध इन 1189. So these are the timing when the Muhammad Ghori is came to the lower Sindh is 82 and the Peshawar is 86. This is Multan 1175, Punjab 1179, Peshawar 1186 and the lower Sindh 1182. ये अटैक करता रहा और इसका नेक्स्ट यहाँ से ये आ रहा है मुल्तान, पेशावर, पंजाब, लोअर सिंध, आते आते यहाँ पे इंडिया में आ गए दिल्ली। दिल्ली हम सबको पता है हमारी कैपिटल आज भी है। और दैट टाइम द रूलर ऑफ हिंदू रूलर ऑफ दैट टाइम इज पृथ्वीराज चौहान। हु वाज द पृथ्वीराज चौहान। ओके,
अब यहाँ से एक नई चीज़ स्टार्ट होती है। घोरी के बारे में इतना ही था कि वो अफगानिस्तान के एक छोटे से टाउन जिसका नाम घोर था, वो वहाँ से आया था और वो अपना एम्पायर एक्सटेंड करना चाहता था, ना कि वो यहाँ से वेल्थ लूटना चाहता था। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन महमूद घोरी एंड मोहम्मद घोरी? दैट इज आफ्टर दैट अब आ जाते हैं एक बहुत बड़ी चीज़ पे। दिस इज द तराइन बैटल। हमने क्या अभी सीखा कि वो इन 4 सिटीज़ को तो जीतता हुआ, इन 4 राज्यों को जीतता हुआ आगे बढ़ रहा था। उसका नेक्स्ट टारगेट था दिल्ली। उस टाइम पे दिल्ली के राजा कौन थे? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान, हम सब ने इनकी गाथाएं सुनी हैं। बहुत बड़े, महान और बहुत साहसी हिंदू राजा, राजपूत राजा थे ये पृथ्वीराज चौहान। अब यहाँ पे आ जाते हैं द बैटल ऑफ तराइन। द बैटल ऑफ तराइन। तराइन ये एक जगह का नाम है, क्योंकि बैटल पहले क्या आम जगहों पे नहीं होते थे, है ना। जैसे हम और आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ बैटल नहीं होता था। बैटल होते थे खाली बड़े बड़े जो लैंड्स, जो फील्ड्स थे वहाँ पे, जिससे आम जनता को फर्क ना पड़े। जिसकी सेना जीतेगी वो उस राज्य को हथियार लेगी। तो तराइन एक जगह का नाम है नियर दिल्ली। ओके, अब पृथ्वीराज चौहान के साथ मोहम्मद घोरी। मोहम्मद घोरी को ऐसे लिख दूं क्या? MG घोरी ऐसे लिख देते हैं, मोहम्मद घोरी। ठीक है। इन 1191 CE आप देख रहे हो 75 में मुल्तान, 79 में पंजाब, 82 में लोअर सिंध और 86 में पेशावर तक वो पहुंच गया था। नेक्स्ट टारगेट दिल्ली था। दिल्ली के राजा थे उस टाइम पे पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान से इनका बहुत बड़ा युद्ध हुआ, बहुत बड़ा बैटल हुआ, जिसको हम बैटल ऑफ तराइन बोलते हैं। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, रिमेंबर दिस थिंग, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। 1191 में ये बैटल हुआ मोहम्मद घोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। कौन जीता? हु वॉन? सो जीते हमारे राजपूत राजा जिनका नाम था पृथ्वीराज चौहान। हु वॉन? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान वॉन। कौन जीता? पृथ्वीराज चौहान। बट द मिस्टेक वॉज दैट कि पृथ्वीराज चौहान, जब मोहम्मद घोरी को ये लगा कि अब मैं हार जाऊंगा, उसने क्या किया? वो बीच युद्ध से ही छोड़ के भाग गया, है ना। वो जब भागा, चला गया, अब जब राजा नहीं है तो युद्ध किसका, और उस युद्ध को मान लिया गया कि पृथ्वीराज चौहान ने जीता है। ठीक है। ठीक 1 साल बाद, आफ्टर 1 ईयर, रिमेंबर 1191, और ठीक 1 साल बाद इसका सेकेंड युद्ध, सेकेंड बैटल हुआ, द बैटल ऑफ तराइन, सेम प्लेस पे 1192 में, जिसमें कि जो मोहम्मद घोरी है, हु वॉन? कौन जीता उस टाइम पे? हु वॉन? दैट मोहम्मद घोरी। इस बार मोहम्मद घोरी जीता और मोहम्मद घोरी ने क्या किया? पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया और अपने साथ अफगानिस्तान ले गया। इसके लिए एक छोटी सी स्टोरी आई वांट टू टेल यू कि मोहम्मद घोरी जब पृथ्वीराज चौहान को अपने साथ वापस ले गया ना, तो वहाँ पे इनके साथ इनके एक कोर्ट पोएट थे जिनका नाम था चंद्र बरदाई। इनके कोर्ट पोएट थे, क्या नाम था उनका? कोर्ट पोएट थे जिनका नाम था चंद्र बरदाई। बरदाई। आपसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन है आपकी बुक में कि पृथ्वीराज चौहान की बायोग्राफी किसने लिखी है? वो लिखी है चंद्र बरदाई ने। ओके, तो चंद्र बरदाई भी उनके साथ गए और मोहम्मद घोरी इतने गुस्से में था पृथ्वीराज चौहान से, क्योंकि इससे पहले वाला तराइन फर्स्ट बैटल वो ऑलरेडी हार चुका था, तो इतने ज़्यादा गुस्से में था कि उसको कुछ समझ में नहीं आया, वो टॉर्चर करना चाहता था। तो उसने गर्म सलाखें करके पृथ्वीराज चौहान की आंखों में डलवा दी, जिससे वो अंधे हो गए। तो अंधे हो गए। अब पृथ्वीराज चौहान बोले क्या, भाई अब तो बंदी है ना, कुछ कह नहीं सकते, कितने भी बहादुर थे, लेकिन भाई जब उनको इतने लोगों ने घेर रखा है, पकड़ रखा है, लोहे की सलाखों से, बेड़ियों से बांध रखा है, तो वो क्या करेंगे? उन्होंने बोला कि पृथ्वीराज चौहान, चंद्र बरदाई ने एक चीज़ बोली, जैसे आज उनको पता है कि आज इनको फांसी दे देंगे या इनको आज मार डालेंगे,
तो चंद्रबरदाई ने मोहम्मद गौरी से बोला कि आपको पता है शब्द भेदी बाण एक कला है, जो लोग बाण चलाते हैं, एरो है ना, आर्चरी जो उनको आती है, वो एक कला है, बहुत पुराने टाइम से ये हमारे इंडिया की है। शब्द भेदी बाण, शब्द मतलब वर्ड्स, भेदी मतलब भेद देना, उनको क्रॉस कर जाना, और बाण मतलब बाणों से। तो आप ऐसा व्यक्ति जो आंखों पे पट्टी बांध ले या जो अंधा हो, अगर उसको शब्द भेदी बाण चलाने आता है तो वो क्या करेगा, बाण मारेगा और जहाँ से वो आवाज़ आ रही है ना वहाँ पे सीधे जाके वो तीर लग जाएगा। तो ये बात चंद्रबरदाई ने मोहम्मद गौरी को बताई। मोहम्मद गौरी ने क्या किया कि मोहम्मद गौरी को बहुत नई चीज़ लगी, बोला कि ऐसे कैसे हो सकता है, कोई अंधा है और वो कैसे बाण मार सकता है। तो मोहम्मद चंद्रबरदाई ने बोला देख लो आप इसका एग्जाम्पल। तो बोला ठीक है भाई चलो देखते हैं। तो उन्होंने बोला कि एक बड़ा सा घंटा रखा और उन्होंने बोला देखो उसके पीछे कोई चीज़ रखी है, वो तुमको उस पर मारना है, मैं घंटा बजवाऊंगा, जैसे ही आवाज़ आएगी तुम उधर मार देना। अब गजनी गौरी जो था वो था अफगानिस्तान का, मुस्लिम था, तो उसकी जो लैंग्वेज थी वो पर्शियन थी। अब हमारे देश की जो लैंग्वेज है वो क्या है, हमें पता है देवनागरी लिपि है हमारी, और जो बेसिक लैंग्वेज है वो मोस्टली हिंदी और संस्कृत रही है। हमारे चंद्रबरदाई ऑलरेडी एक पोएट थे और बहुत शातिर दिमाग थे, बहुत ग्रेट थे। पृथ्वीराज चौहान के पोएट, ऐसी बात तो है नहीं कोई आम आदमी रहेगा। चंद्रबरदाई ने एक दोहा कहा, वो दोहा बहुत ज़्यादा फेमस है, आपने भी सुना होगा कि मुझे एग्जैक्टली रिमेंबर नहीं है बट आई विल ट्राई दिस, कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। उन्होंने इस दोहे से उनको बता दिया, क्योंकि शब्द भेदी तो आता ही था पृथ्वीराज चौहान को, तो उन्होंने इस वर्ड से, इस लाइन से बता दिया कि आप कैसे चौहान पृथ्वीराज चौहान को कह रहा है, और सुल्तान कौन है, गौरी है उस टाइम पे सुल्तान। तो उसने बोला कि 4 बांस की लंबाई है, 24 गज की ऊंचाई है, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, अंगुल अष्ट ये 4 उंगलियों की दूरी है, जहां तुम खड़े हो ना उससे 4 अंगुल की दूरी है, इतनी ऊपर, ता ऊपर सुल्तान है, उतने ऊपर सुल्तान बैठा है, मत चूके चौहान, चौहान पृथ्वीराज चौहान को कह रहे हैं कि चूकना मत, क्योंकि आज चूक गए तो मर जाओगे और तुम सुल्तान को, गौरी को मार नहीं पाओगे, तुम अपना बदला नहीं ले पाओगे। ये कहते हुए उन्होंने इस दोहे को कहा, और वैसे ही तुरंत पृथ्वीराज चौहान ने अपना तीर कमान चलाया और घोरी को उस बाण से मार गिराया। उसके बाद उनको वहाँ मार दिया गया। लेकिन आप वीरता का, एक साहस का एग्जाम्पल देख सकते हैं कि हमारे राजपूत कितने मतलब शक्तिशाली थे, कितने साहसी थे, आंखें ना होते हुए भी इतने बड़े सुल्तान को मार गिराया, जिसने लगभग आधे नॉर्दर्न इंडिया तक उसने अपना कैप्चर कर लिया था। बहुत अच्छी स्टोरी है, आई लव इट दिस वन। सो ये मोहम्मद गौरी का इंट्रोडक्शन था अबाउट दैट। बात करते हैं, मोहम्मद गौरी आ गया, एक इम्पॉर्टेंट थिंग है, वो अपना राज्य बढ़ाना तो चाहता था लेकिन वो इंडिया रुक नहीं पाया, बल्कि इसको इरेज करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब ये भी समझ में आ गया इंडिया का, ठीक है, तो इसको भी यहाँ से अभी रिमूव करते हैं। एंड देन अब आ जाते हैं हम मोहम्मद गौरी पे अगेन। मोहम्मद गौरी ने क्या किया, जब उसने अटैक करा ना, अब पृथ्वीराज चौहान मारे गए, मोहम्मद गौरी भी मारा गया। मोहम्मद गौरी ने क्या किया कि अपने एक स्लेव को, एक स्लेव जिसका नाम था कुतुब उद दीन ऐबक, नाम जरूर सुना होगा आप सबने, कुतुब उद दीन ऐबक। नेम लिखने का तरीका देख लीजिए, बिकॉज इट इज़ इन अफगानिस्तान, इट इज़ इन अ पर्शियन लैंग्वेज और कैन वी से उर्दू लैंग्वेज। हमें इसी तरीके के नाम बार बार याद करने पड़ेंगे। ओके, तो कुतुब उद दीन ऐबक, इनको हम जल्दी से बोलते हैं तो कुतुबुद्दीन ऐबक बोलते हैं। ओके, स्लेव था, किसका स्लेव था, घोरी का, घोरी का स्लेव था कुतुबुद्दीन ऐबक। आप मान लीजिए कि सेनापति था, जनरल ऑफ आर्मी था, और उसको इन्होंने क्या किया, इंचार्ज बना दिया। किसने बना दिया, घोरी ने इंचार्ज बना दिया कुतुबुद्दीन ऐबक को। कहाँ का इंचार्ज बना दिया,
इंडिया का। उसने बोला मैंने इंडिया में जितनी जो प्लेसेस हैं, जितनी सिटीज़ हैं जिनको मैंने कैप्चर किया है, उनके आज से इंचार्ज तुम हो। तो जैसे ही 2000 कह रही हूँ 1206 CE में जब घोरी की मृत्यु हुई, उसके बाद कुतुबुद्दीन ने अपने आप को एज अ इंडिपेंडेंट रूलर घोषित कर दिया। उसने बोला आज के बाद इंडिया का जो राजा है वो कोई और नहीं है बल्कि मैं हूँ और मेरे आने वाले जो सक्सीजर्स हैं वो हैं। तो ये हम अभी पढ़ेंगे अपनी दिल्ली सल्तनत जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें। यहाँ तक समझ में आ गया? घोरी वापस चला गया और उसने अपने एक स्लेव को यहाँ पे छोड़ दिया जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको इंडिया का इंचार्ज बना दिया और कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 CE से अपना राज स्टार्ट कर दिया, जो हम अभी नेक्स्ट चैप्टर दिल्ली सल्तनत में पढ़ेंगे। तो दिस इज़ अ मुस्लिम इन्वेडर, हमने पढ़ लिया। नॉर्थ इंडिया उस टाइम रूलिंग के बारे में भी हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट वीडियो, ये चैप्टर एक्चुअली बहुत लेंदी है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, तो अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 4 में, जिसमें हम पढ़ेंगे साउथ इंडियन रूलर्स के बारे में, साउथ इंडियन किंग्स एंड देयर किंगडम्स के बारे में। ओके, सो तब तक के लिए गुड बाय। ध्यान दें, पढ़ते रहें, इन डेट्स को नोट डाउन ज़रूर करें, बिकॉज इन हिस्ट्री द डेट्स आर एंड देयर किंग्स एंड देयर किंगडम्स एंड विद their dates very important. Okay, so I hope this one is complete. Thank you for watching and keep studying, keep safe. Okay, so let's we meet in a next video, part number 4. Thank you.